Hello everyone, welcome to my channel Educational Fun. My name is Namita and today I'm gonna teach you class 6th NCERT CBSE Science chapter number 1 Food and its sources question and answer. So if you have not watched out my previous video that was on detailed explanation for this chapter, so go and watch out it because when you will understand the chapter then automatically you will be able to write the question and answer. So do not forget to watch out it. And if you have not subscribed to my channel, that is the Educational Fun by Namita, so make sure you subscribe it and press the bell icon also so that whenever I upload my new video, you can get the notification. And if you like my explanation, make sure you like this video. Now without any further delay, let's begin with the question and answers. So as I have told you that in the explanation part we will get activities and hot question. So we will discuss them in the question answer part video. So we have got 3 activities, 1, 2 and 3. First was for making, that was raita making, and we have already discussed there. Now let's discuss second, third and hot. So name the edible plant part for each of the following. First is rice. Rice, seed of grass. Rice is a seed of grass. Second, corn. Corn is a seed. Lemon. Lemon is a fruit. Turmeric is an underground stem. Pumpkin is a fruit. Now comes the activity 3. Activity 2 and activity 3 are similar to each other. Identify the edible parts of the plants. Okay, potato. Potato is an underground stem. Potato is an underground stem. Green beans. Green beans are seed. Carrot is root. Tomato is fruit, not a vegetable. Note down that tomato is fruit, not a vegetable. Many people used to do this mistake. They consider tomato in vegetables, but no, it is fruit. Brinjal, lady's finger, tomato, they all are fruits, not any vegetable. Now come to asparagus, that is stem. Spinach is leaf. Strawberry is fruit. Broccoli is flower. Onion is modified leaf. Celery is leaf. Corn is seeds. Peas are seeds. Now here comes the hots. Make a food chain from the following. Here names are given and we need to make food chain. Okay. Grass, grains, squirrel, snake, eagle. ग्रेन्स आते हैं ग्रास से. स्क्विरल डिपेंडेंट होती, मतलब स्क्विरल डिपेंडेंट होती है ग्रेन्स पे और वो ग्रेन्स खाती है तब भी वो उस पर डिपेंडेंट होती है. स्नेक डिपेंडेंट होता है स्क्विरल पे. स्नेक खाता है स्क्विरल को. ईगल खाती है स्नेक को. ग्रेन्स, रैट, लॉयन. रैट खाता है ग्रेन, लॉयन खाता है रैट को. ग्रास, गोट, लॉयन. गोट खाती है ग्रास एंड लॉयन खाता है गोट को. नाउ कम्स द क्वेश्चन एंड आंसर. Why food is important for us? We have discussed it many times in the chapter that why food is important for us. Food is important for us as it provides us energy. Okay, it provides us energy, but if we are not having any of the energy, we cannot perform any of the function. Okay, we cannot perform any of the function when we don't have energy. We are not able to perform any of the activity. Second is, what are the functions of food? First is, as usual, that we get energy from food. Second is कि वो हमें नए सेल प्रोवाइड करता है and replace the worn out old cells. Third, food enables the growth and development of the body. Fourth, food protects our body against germs and diseases and gives our body to ability to fight with infections. तभी हमारे पास अगर हम हेल्दी खाना लेंगे, एक अच्छी तरह से फूड लेंगे, तो क्या होगा, उससे जो जर्म्स और डिसीजेस होती हैं हमारी बॉडी उसको इतनी कैपेबल हो जाएगी कि उन जर्म्स और डिसीजेस से हमको प्रोटेक्ट कर सके हमारी बॉडी, और एक बॉडी को हमारी एक एबिलिटी मिल जाएगी जिससे कि वो इन्फेक्शंस को फाइट कर सके. फिफ्थ इज, इट हैज़ अ सोशल फंक्शन. ऑल फेस्टिवल्स हैपन अराउंड इट. फूड के पास एक सोशल फंक्शन भी होता है. एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट गणेश चतुर्थी पे हम मोती चूर के लड्डू खाते हैं. मकर संक्रांति पे हम तिल के लड्डू खाते हैं. सो दिस इज व्हाट द सोशल फंक्शन ऑफ द फूड. नेक्स्ट इज, नेम 3 plants and their part that we eat. This is some examples. There are some examples, but you can write by your own also. Example of edible plants are banana. The fruit is edible. The center of the stem is also eaten. Less commonly, the flowers of the banana tree is also used as a food. We have discussed in our previous video that banana flower comes and it is used as a food. Carrot, it is the root of the carrot plant. Rice, the grains of rice that are eaten are the seeds of the rice plant. In what ways
Is a scavenger useful to the environment? In what way is a scavenger useful to the environment? This also we have understood nicely, understand nicely. Let's understand this. Scavenger consume dead organisms and prevent them from accumulating in the environment, which may lead to the outbreak of diseases. As I have told you कि अगर dead animal की body कहीं पे भी घर के आसपास आपके पड़े रहेगी तो क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद ना स्मेल एक पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी, डर्ट फैल जाएगी, एंड उससे जो भी कीटाणु होते हैं गंदे वो उगना चालू हो जाएंगे, पैदा होना चालू हो जाएंगे और पूरे एनवायरनमेंट को अलग अलग प्रॉब्लम्स डिसीजेस से उनको बीमार कर सकती है. Therefore, scavengers keep the environment clean. For example, termites consume the remains of dead plants while vultures consume dead animals. जो टर्माइट्स होते हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं? डेड प्लांट्स को. वर्चर्स कंज्यूम करती हैं डेड एनिमल्स को. नाउ कम्स दी, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? No, we don't find that all living beings need the same kind of food, because we have read in the chapter, I have explained you in the chapter, you have watched out the video, we have seen that herbivorous, carnivorous and omnivorous, these are the classification of animals, and these three classification of animals, their feeding habit is different from each other, right? Different from each other. They all are different from each other. Herbivorous is different, carnivorous, omnivorous, they all are different from each other. So let's read out the answer. No, all living beings do not need the same kind of food. Some animals eat plants as food and they are called herbivorous. Some animals eat other animals and they are called as carnivorous. Which animal? Carnivorous. Some other eat food from plant sources as well as animals, and such living beings are called omnivorous. Which omnivorous? And ये लागू होता है ह्यूमन बीइंग पे भी. ह्यूमन बीइंग भी omnivorous, carnivorous and herbivorous होते हैं. Why should we eat cooked food? This is a very common question कि हमें cooked food क्यों खाना चाहिए. हमें cooked food इसलिए खाना चाहिए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी को अच्छा रखता है, कुछ भी मतलब आगे प्रॉब्लम नहीं आते, हर चीज़ में अच्छा होता है. जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको फाइट करने के लिए होता है. अगर हम कच्चा फूड खाएंगे तो वो अटकेगा एंड हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे, इश्यूज़ क्रिएट करे. एंड क्या होता है ना कि जब कुक करते हैं हम फूड को तो जो फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड इसलिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है. कुक्ड फूड इज़ ईजिली डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी. इट ऑल्सो kills harmful germs. This is a very important point कि जब हम फूड को कुक करते हैं तो हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं. कुकिंग इंक्रीजेज द टेस्ट ऑफ द फूड. दैट इज़ वाई वी शुड प्रिफर कुक्ड फूड either manually or with the help of an artificial health extractor. Now comes the state whether the statements given below are true or false. Different people have different choices of food. Yes, it's true because you have seen at your home that your sister likes some other thing, your parents like some other thing, like your sister likes spicy food, your parents like sour food, your grandmother and grandfather like sweet food. So it's true that सबकी अलग अलग choices होती हैं food खाने की. If a person does not get food, he feels weak and is likely to fall ill. Yes, it is also true क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी जनरेट नहीं होगी. उसकी बॉडी में फूड से उसको जो एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए वो नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी. तो इट्स रैंडमली मतलब कॉमन है बहुत ज़्यादा कि इंसान बीमार होगा, उसको चक्कर जैसे लगेंगे एंड वो बीमार भी हो सकता है. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा ईट द सेम टाइप ऑफ फूड. नो, ये जितने भी हैं हमने पढ़ा कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़े, ये कभी भी सेम काइंड का फूड नहीं खा सकते. क्योंकि आपने देखा होगा कि प्लांट्स वो खाते हैं, जैसे सब्जियां खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं. नो, प्लांट्स को अलग चीज़ें लगती है. प्लांट्स को क्या लगती है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें प्लांट लेते हैं. Fourth is there is no effect on our ability to do work even if we do not eat food for a day. फॉल्स. बिकॉज अगर इसमें बोला है कि अगर हम एक दिन के लिए फूड खाएं तो हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी एनर्जी पे या हमारी बॉडी पे. नहीं, बिल्कुल पड़ेगा. हमारे पास एबिलिटी ही नहीं होगी कि हम जर्म्स और इन्फेक्शन से फाइट कर सकें. ओके, तभी हमको ना हेल्दी फूड एंड एक प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट जो होती है उसको साथ में लेके चलते हुए हमको फूड खाना चाहिए, जिससे कि हमको एनर्जी मिले, प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ये सब चीज़ें हमको मिले. ओके, जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो ट्रू और फॉल्स होते हैं ना, ये ना मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है. जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं ट्रू और फॉल्स. बहुत मज़ा आता है इनको करने में.
Name the plants from which the food ingredients are obtained from the roots, stem and leaves. From roots हमको क्या क्या मिलता है? कैरेट, बीटरूट, स्वीट पोटैटो. From stem, potato, sugarcane. Potato and sweet potato both are different. From leaves से हमको क्या मिलता है? Spinach and fenugreek cabbage. Right? Now let's come. What are cereals? What do we get from them? Give example of cereals. Cereals are important plant products for all human beings. They are used as a food ingredient. They are the main source of carbohydrates and provide energy. जो cereals होते हैं ना वो plant product होते हैं. Cereals आपने देखा होगा दाल चावल, ठीक है. चावल क्या होते हैं? cereals होते हैं. और जो दाल होती है वो क्या होता है? pulses. तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट प्रोडक्ट हमारे लिए वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे हमको एनर्जी मिलती है और मेन सोर्स होता है काय का? कार्बोहाइड्रेट्स का. किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे ज़्यादा मेन सोर्स होता है और इसको एक फूड इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करा जाता है. एग्जाम्पल आर गिवन wheat, corn, rice, barley, etc. What is food chain? We have discussed many a times that what is food chain, what is food chain. A food chain is a sequence which shows how living things in an environment are related to each other according to their feeding habit. Why do you think food forms a very important component of all festivals? Answer: food festivals serve as a platform for sharing agrobiodiversity and are a cultural expressions of traditional food and agricultural traditions. Now next is write down the ingredients to prepare rice kheer. ओके, तो मैं आपको जो इसका पहले वाला क्वेश्चन है उसका मतलब समझा दूँ. हाँ, क्या होता है ना कि कश्मीर में कुछ अलग खाना चलता है, मुंबई में कुछ अलग खाना चलता है. कश्मीर का कुछ अलग फेवरेट डिश होगी एंड मुंबई की कुछ अलग फेवरेट डिश होगी. तो क्या होता है कि कुछ लोग जैसे इंडिया में हम रह रहे हैं तो इंडिया में या इंदौर में या दिल्ली वगैरह में सब मिक्सअप होके रहते हैं. हमारी जो एक कंट्री है वो बहुत डाइवर्स कंट्री के नाम से जानी जाती है. तो उसमें क्या होता है ना कि हर टाइप के लोग रहते हैं. हर टाइप के लोग लाइक मुस्लिम्स भी रहते हैं, सिक्किम भी रहते हैं, पंजाब वाले भी रहते हैं, देन हिंदूज़ भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं. तो ये क्या है, हमारी जो इंडिया है उसको डाइवर्सिटी कंट्री के नाम से जाना जाता है. तो हम सब डाइवर्स लाइक मिलजुल कर बहुत ही प्रेम प्यार से रहते हैं. तो अलग अलग अपने खाने को शेयर करने से क्या होता है ना, हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बारे में, अलग अलग डिशेस के बारे में पता चलता है. तभी जो फूड होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हर एक फेस्टिवल में. चाहे वो मुस्लिम्स का ईद हो, चाहे वो हिंदूज़ का कुछ दिवाली वगैरह हो या कुछ भी हो, सब में ना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस बना के चलता है. राइट डाउन द इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर राइस खीर. आपकी मम्मा राइस खीर बनाती होंगी तो आपने देखा ही होगा कि वो क्या क्या डालती हैं. बहुत ही कॉमन सी चीज़ें डलती हैं जो सबको अधिकतर पता ही होंगी. मिल्क डलता है जो कि बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, उसके बिना तो खीर बन ही नहीं सकती. राइस डलता है. अगर हम राइस खीर बना रहे हैं तो मेन चीज़, जो उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? राइस. शुगर आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है. कार्डेमम पाउडर मतलब इलायची पाउडर, सेफ्रॉन एंड घी. नाउ कम्स वी चूज द करेक्ट ऑप्शन. विच पार्ट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इज ईटेबल? कौन सा जो पार्ट है वो कौन सा मस्टर्ड प्लांट का हम खा सकते हैं? ए सीड्स एंड फ्लावर्स, बी लीव्स एंड फ्लावर्स, सी सीड्स एंड लीव्स, डी स्टेम एंड रूट्स. आंसर इज सी. क्यों सी? सीड्स एंड लीव्स आर यूज्ड बिकॉज जो सीड्स होते हैं वो हम ऑयल और स्पाइसेस की तरह उसको यूज़ करते हैं और जो लीव्स होती हैं हम उसको वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं. जो आपने सुना होगा बोलते हुए अपने एल्डर्स से कि सरसों का तेल खाते हैं. सरसों का तेल तो क्या होता है ना कि जो सरसों का तेल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल होता है. गर्म पानी लो, सो दैट वार्म वाटर लोगे तो उसमें आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एंड जितनी भी प्रिवेंट करेगा आपको किससे, जितनी भी डिसीजेस एंड जर्म्स वगैरह इन्फेक्शंस रहेंगे उससे. सो drink warm water only. From where does honey come? How is it produced and collected? We get honey from honey bees. Production of honey. Honey bees develop their nest called hives on tall trees and buildings. हनी बीज जो होती है ना बहुत ही शार्प माइंडेड होती हैं. उनको अपने घर को बचाना रहता है तो क्या करती हैं, उसे कहीं पे भी शॉर्ट एरिया पे नहीं बनाती हैं. ठीक है, लो लेवल वाले एरिया पे घर नहीं बनाती हैं. वो बड़े बड़े पेड़ों पे और बड़ी बिल्डिंग्स पे ही बनाती हैं क्योंकि उनको इतनी अक्ल है, वो इतनी शार्प माइंडेड है. उनको पता है कि अगर हम लो सरफेस एरिया पे कहीं पे बनाएंगे तो क्या होगा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका वो छत्ता तोड़ देंगे एंड देन वो फिर उनके लिए घर ही नहीं रहेगा, उनका नेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा. तो उनको अपनी हीव्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या करती है ना, वो बड़े बड़े टॉल ट्रीज पे वो बिल्डिंग्स बनाती है अपना घर. बी वर्कर्स कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर इन कंटेनर. बी वर्कर्स जो होते हैं ना, मतलब बी कैसे कलेक्ट करती है? बी कलेक्ट कैसे करती है? जो फ्लावर्स की जो नेक्टर होता है, मीठी सी रस होती है, उसको कलेक्ट करके अपने
उसमें जो छत्ता होता है, बी हीव होता है, उसमें कलेक्ट करती जाती है. Bee workers collect nectar from flowers and store in container. The honey bees are also reared in artificial hives. Extraction of honey. Now comes the extraction of honey. Extract कैसे होती है? उन्हें hives वगैरह बना दिया, वहाँ पे उन्हें nectar वगैरह collect कर दिया, पर अब honey extract कैसे होगी? Honey is extracted from bee hive for oil and spices, while leaves are used as vegetable. Now comes the second. Honey bees are often seen sitting on flowers. Why do they do so? हमको बहुत बार अपने फ्लावर्स पे, आप अपने कभी ना गार्डन में जाना, गार्डन में आप किसी भी गार्डन में जाना, आपके घर में गार्डन है तो वहाँ पे जाना, आपको ना प्लांट्स किस टाइप के प्लांट्स जिसमें मेनली फ्लावर्स आते हों, ठीक है, जिसमें मेनली फ्लावर्स आते हों, उस प्लांट्स के पास में जाना, तो आप देखोगे ना कि वहाँ पे ना जो हनी बीज होती है ना, आपको जैसे ही आप जाओगे या थोड़ा सा भी प्लांट का कोई भी आपको पत्ता टच हो गया तो क्या होगा, हनी बीज इधर उधर उड़ने लग जाएंगे आपके गार्डन में इतनी सारी हनी बीज होंगी, क्योंकि आपके गार्डन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स लगे, तो वहाँ पे तो 100% श्योर हूँ मैं कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो हनी बीज होती हैं वो आती ही होंगी. एंड आपने बहुत बार देखा भी होगा कि आपके घर के अंदर कहीं बाहर, घर के अंदर या बाहर क्या होता है ना कि वो अपने बी हीव्स बना लेती हैं, राइट. सो A is they like flowers, B is they lay eggs on flowers, C is they suck nectar from flowers, D is all of these. So A, B and D are wrong, C is correct. They suck nectar from flowers. जो नेक्टर होता है वो एक स्वीट सा जूस होता है, उसको वो अपने बी के अंदर कलेक्ट करती है, बी हीव्स के अंदर, तो क्या होता है ना उससे शहद बनता है. सो बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. सो एवरीवन, यहाँ पे ही हमारा फुल चैप्टर खत्म होता है विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट एंड विद द क्वेश्चन आंसर पार्ट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अब मैं नया वीडियो लाऊंगी नए टॉपिक पर, so do not forget to watch out it, and I hope you like this video and I hope you find this video useful and helpful. So अब हम लाएंगे नया टॉपिक, और यहाँ पे हमारा पूरा ये वाला चैप्टर पूरी तरह से अब फिनिश हो चुका है. इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया. आपने अगर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं देखा है तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आउट दिस, बिकॉज अगर आप वो देखोगे पहले फिर ये वाले को देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी हर चीज़. सो या गाइस, make sure you like this video, share with your friends so that they can also get this help. Subscribe to my channel, that is Educational Fun by Namita, and comment me below if you have any query related to chapter or my explanation. So till then, stay tuned, take care and bye bye.